तेलंगाना के वजीर आईटी केटी रामाराव ने रंगारेड्डी जिले के चंदन वैली में डाइफोको और निकोमैक ताइपिशा कंपनियों की संगी बुनियाद तकरीब में शिरकत की। जापान की दोनों कंपनियां जिले रंगारेड्डी के चंदन वैली में अपनी यूनिट कायम कर रही हैं। केटीआर ने इन यूनिट का संगी बुनियाद रखा। बाद में खिताब करते हुए उन्होंने दोनों कंपनियों का अपनी फैक्ट्रियों का तामीराती काम शुरू करने और मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी हासिल करने का यकीन जाहिर किया। केटीआर ने बताया कि 575 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 1600 बराह रास्त मुलाजिमतें मिल रही हैं। कंपनियों ने मुकामी लोगों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया है। आईटी वजीर ने कहा कि चंदन वैली मुकामी रहनुमाओं और मुकामी लोगों के ताउन से रियासत में सबसे अहम सनती इलाका बनकर उभर रहा है। जापान से मजीद सरमायाकारी को राग़ब करने के लिए केटीआर ने जापानी कौंसल खाने से जरूरी ताउन की दरख्वास्त की और कहा कि जरूरत पड़ने पर चंदन वैली में जापानी कंपनियों के लिए क्लस्टर कायम किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना मुस्तकबिल में भी मौसर कारकर्दगी जारी रखेगी। గతం కంటే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తూ ఎదగడం పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది జాపనీస్ కల్చర్లో ఒక అంతర్భాగం అని చెప్పి వారు చెప్పారు. Sir, in fact, one of the things I believe is, I think your success will hinge on this one simple philosophy. If you're able to give that confidence to your investors or to your people, that their tomorrow is going to be better than today in your leadership, then I think you'll certainly succeed in life. My compliments to you on teaching us something truly important. And Japan is a country that I've always admired. Each and every time I've visited Japan, I've come back with admiration, respect, and a lot of learnings. This is a country there are tsunamis, there are earthquakes, there are many challenges which nature has imposed on Japan. Japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in Hiroshima and Nagasaki. The way they bounced back after 1950s and the way they have actually become a force to reckon with in terms of their economic might. Srinivas was telling me that he will be inaugurating this facility in about 14 months from now. When I asked him how, he said, the Japanese work like a clock. They work as per schedule, as per a timetable and as per a timeline. And he is supremely confident that he will inaugurate his facility next September. I am equally confident that once that happens, we'll be able to bring in more and more Japanese companies because they will then realize that Telangana means business. So thank you so much for inviting us. तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना के किसान चीफ मिनिस्टर केसीआर का साथ देंगे। तलासानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाद में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से ज़राअत के लिए 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस वो हुकूमत है जो बर वक्त फसलों में सरमायाकारी के लिए माली इमदाद, बीज और खाद फराहम करती है। रियासती वजीर ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के ये कहने पर कि ज़राअत के लिए 3 घंटे बिजली काफ़ी है, उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रेवंत रेड्डी का ये कहना उनकी लाइल्मी का सबूत है। उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर बोत्सा सत्यनारायणा पर भी नुक्ताचीनी की और उनके तबसरे को गुमराहकुन करार दिया। तलासानी ने कहा कि जाती तनकीद मुनासिब नहीं है और बोत्सा सत्यनारायण को उन्होंने रियासत आंध्र प्रदेश के हालात पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। దగ్గర 45-50 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన మూర్ఖులే మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే కాళేశ్వరంలో నీళ్ళు వస్తలేవంట, 24 గంటల పవర్ వస్తలేదంట. మన హైదరాబాద్ సిటీలో కంప్లైంట్ ఎక్కడ నేను చూడలే. ఇంత హాట్ సమ్మర్లో కూడా చూడలే, రైనీ సీజన్లో చూడలే, వింటర్లో కూడా చూడలే. రెండోది రాష్ట్రంలో రైతాంగం కూడా మేము కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అద్భుతంగా పంటలు పండుతున్నాయి, మాకు 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుండ్రు, సాగునీరు ఇస్తుండ్రు అని చెప్పి ప్రజలు మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మూర్ఖులకి ఏంటంటే ఏం కనిపిస్తలేదు. వాళ్ళ ఇంట్లో పోయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అడుగుతూ చెప్తారు కరెంట్ ఇస్తుందా లేదా అనేది. వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు విషయం పక్కదారి పట్టించి వ్యక్తిగతమైనటువంటి విమర్శలు చేయడం, వ్యక్తులను టార్గెట్ చేయడం. నేనేమంటే ఇష్యూ బేసిక్, మీకంటే అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నాం, ఈ దేశంలో అందరికంటే అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నామని మేము చెప్పడం కాదు. మాకు వచ్చే అవార్డులు, రివార్డులు
వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి అప్రిషియేట్ చేసిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య మనం నిరంతరంగా చూస్తున్నటువంటి. ఇక వీళ్ళకి ఏంటంటే రొటీన్ పరిపాలన. మేము బాగుండాలి, ప్రజలు కాదు, మేమే బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव से हुई खुसूसी मुलाकात सियासी हलकों में मौजू बहस बनी। राजा सिंह के बीआरएस में शामिल होने की अफवाहें फैल गई। तफसीलात के मुताबिक राजा सिंह ने जो गोशा महल असम्बली हलके की नुमाइंदगी करते हैं, वजीर खजाना हरीश राव से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी और हलके की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने के लिए नुमाइंदगी की थी। एमएलए राजा सिंह के हरीश राव से मुलाकात के बाद सियासी गोशों में हलचल मच गई और ये खबरें फैलने लगी कि राजा सिंह बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी रहनुमा ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने हरीश राव से गोशा महल हलके में अस्पताल की तामीर के सिलसिले में मुलाकात की है। राजा सिंह ने ये वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते, चाहे उन पर आयद मोतली बरकरार रहे या फिर हटा दी जाए। కొన్ని మీడియా వాళ్ళు ఒక న్యూస్ నడుపుతున్నారు, రాజా సింగ్ వెళ్తున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అని. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా వెళ్ళను. ఇవాళ హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ గారితోని వాళ్ళ హౌస్లో నేను కలిసిన, వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కలిసిన. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే 2014 నుంచి ఎప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయినా కదా, అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా నా దుల్పేట్ గురించి నేను రేజ్ చేస్తున్నా కొన్ని సబ్జెక్టు. దుల్పేట్ రిహాబిలిటేషన్ కానీ, డెవలప్మెంట్ కానీ, అదేవిధంగా దుల్పేట్లో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది. అది దాదాపు 3 to 4 బెడ్ హాస్పిటల్. నేను హరీష్ రావు గారికైనా ముందు ఉన్న మినిస్టర్ వాళ్ళు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, అయ్యా మా దుల్పేట పైన కొద్ది దృష్టి పెట్టండి. మా దగ్గర ఒక చిన్న హాస్పిటల్ ఉంది, 30 బెడ్ కానీ 50 బెడ్ కానీ దానికి ఒక మోడల్ హాస్పిటల్గా తయారు చేయడని నేను కంటిన్యూగా 2 మినిస్టర్తో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, హెల్త్ మినిస్టర్తో. నో రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు ఈ 3వ మినిస్టర్ మన హరీష్ రావు గారు, వాళ్ళు కూడా నేను చాలాసార్లు లెటర్ రాసిన, చాలాసార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన. కానీ ఇవాళ అంటే నిన్న హరీష్ రావు గారికి ఒక మెసేజ్ పెడితే, ఓకే రాజా సింగ్ ఇవాళ రండి, మీ ఇష్యూ ఏంది చెప్పండి అంటే, ఇవాళ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి హాస్పిటల్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేసిన. సార్ నాకు దుల్పేటు పేద ప్రజలు ఉంటారు, ఈ చిన్న హాస్పిటల్కి మీరు ఒక మోడల్ హాస్పిటల్గా తయారు చేస్తే చాలా మంది పేద కుటుంబంకి లాభం దొరుకుతుందని ఇవాళ హెల్త్ మినిస్టర్ గారికి నేను పోయి ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టిన. అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారు అన్నారు, నేను స్వయంగా ఒక టీంని నేను పంపించి నా తరఫు నుంచి ఏమవుతుంది అది నేను హెల్ప్ చేస్తా అని హరీష్ రావు గారు మాట ఇస్తారు. నేను హరీష్ రావు గారికి మళ్ళొక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, సార్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను ఒకటే ఒక సబ్జెక్టు నేను రేజ్ చేస్తున్నా, పబ్లిక్ ఇష్యూస్. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో హాస్పిటల్స్ని కొద్ది మోడల్ హాస్పిటల్గా చేయండి అని నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా నేను బీజేపీలోనే ఉంటా, బీజేపీలోనే సస్తా. ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ నా సస్పెన్షన్ తీయకపోతే రాజకీయం సన్యాసం తీసుకుంటా, ధర్మ కార్యక్రమం చేసుకుంటా, భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రం చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా. కానీ బీజేపీ పార్టీ ఇర్షి నేను వేరే పార్టీలో నేను వెళ్ళను. फरीज़ा हज की तकमीली करने वाले आज़मीन हुजाज का इस्तकबाल करने के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मोहम्मद सलीम सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, AEO इरफान शरीफ और हज कमेटी अमला शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन के इस्तकबाल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जारिया साल 7044 आज़मीन हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से सफ़र हज पर रवाना हुए थे। रियासती हज कमेटी की जानिब से मौसूला इतलात के मुताबिक
जुमेरात की शब तक कुल 5 हुजाज इंतकाल कर गए हैं। आपको बता दें कि हुजाज इकराम का पहला काफिला जो मदीना मुनव्वरा से रवाना होगा शमशाबाद RGI एयरपोर्ट पर 15 जुलाई की सुबह 8 बजे पहुंचेगा और दूसरा काफिला सुबह 8:15 पर हैदराबाद पहुंचेगा। दोनों परवाजों के जरिए कुल 300 आजमीन हफ्ते को हैदराबाद पहुंच जाएंगे। आखिरी काफिला 30 जुलाई को हैदराबाद लौटेगा। शहर के इलाके नामपल्ली में वाक़ मस्जिद बगदादी टेक में सीढ़ियों की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है। नमाज के लिए आने वाले मुसल्लियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। नामपल्ली इलाके में वाक़ मस्जिद बगदादी टेक वक्फ बोर्ड दफ्तर और जेर तामीर अनीसुल गुरबा की इमारत से कुछ ही फासले पर वाक़ है। यहाँ पर हुजाज के लिए तरबियती कैंप समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद होते रहते हैं और मेहमानाने खुसूसी की आमदोरफ्त जारी रहती है। बताया गया है कि मस्जिद को लाखों रुपये की आमदनी मौसूल होती है, फिर भी जिम्मेदारान मस्जिद आने वाले मुसल्लियों की तकालीफ को दूर करने से कासिर हैं। सीढ़ियाँ टूटी फूटी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कोई इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहा है। मुसल्लियों ने जिम्मेदारान से ख्वाहिश की है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें और सीढ़ियों की मरम्मत करवाएं ताकि मोमर शहरी और कमसिन बच्चे भी इन सीढ़ियों के सबब किसी भी हादसे का शिकार होने से महफूज रह सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने माह मुहर्रम के पेश नज़र आशुर खानों का तफसीली तौर पर दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLC रियाजुल हसन आफंदी ने बीबी का अलावा वो दीगर का आज दौरा किया और माह मुहर्रम के आगाज के पेश नज़र किए गए तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अकीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात से मुताल्लिक़ भी जोनल कमिश्नर से तफसीलात हासिल की और हुकाम को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। उनके हमरा कॉरपोरेटर अलमदार वजाही व दीगर भी मौजूद थे। रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि मंगल तो इंशाअल्लाह ताला या वेडनेसडे को, ट्यूसडे या वेडनेसडे को चांद रात होगी। अय्याम अज़ा का आगाज़ होने जा रहा है। इस ज़मन में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व सदर मोहतरम वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन MLA चंद्रायन गुट्टा व फ्लोर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और हमारे तमाम इस हल्के के MLA जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब की नॉलेज में रखते हुए मैं और जनाब नमदार वाला जय साहब कारपोरेटर दबिलपुरा ने आज अलाया बीबी में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी और इस साल भी ये देखा जा रहा है कि आने वाले अय्याम के दिन जो है बारिश के ज़्यादा आसार हैं, उसमें ज़ायरीन को तकलीफ़ नहीं होने के लिए, उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर एक टेम्पररी शेड लगाया जा रहा है, जो 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह सवारी अलम मुबारक बरामद होने से पहले, जिस तरह लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था कि अलम मुबारक बरामद होने से पहले शेड्स निकाल दिया गया था, इंशाअल्लाह इस साल भी ऐसा ही किया जाएगा और इस काम का भी आगाज़ किया गया है। मैं आप तमाम को इस बात की इत्तला देता हूँ। इंशाअल्लाह सभी उम्मीद है कि हम जो है चांद रात तक इस शेड को मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा भी तमाम आशिर खानों का तमाम आशिर खाने जात का जो है काम आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह में जोनल कमिश्नर 11 बजे तमाम कारपोरेटर साहब के साथ जो है मैं भी मौजूद रहूँगा। इंशाअल्लाह हम दौरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला काम तो ऑलरेडी सेंक्शन हो गए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए कल से निकला जाएगा। रियासती वजीर बराए सियाहत व सखाफत श्रीनिवास गौड़ ने MLA मलकाजगिरी, मैनमपल्ली हनुमंतराव और खुतबुल्लापुर MLA विवेक के हमरा सरवाए पापन्ना के मुजस्सिमे का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिले मेडचल के अलवाल में मेमोरी साई प्रसाद गौड़ के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए अलवाल सर्किल के तहत इंदिरा गांधी चौराहे पर नस्ब किए गए सरवाए पापन्ना के मुजस्सिमे का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने तेलंगाना के हुसूल के लिए सरवाए पापन्ना की जानिब से की गई
जद्दोजहद की सिताइश की और उस जद्दोजहद को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में एमएलए मैनपल्ली हनुमंतराव, कुतबुल्लापुर एमएलए विवेक के अलावा स्वामी गौड़, रवि गौड़, जिले और रियासती सतह के गौड़ बरादरी के रहनुमा और मुकामी कॉरपोरेटर्स ने भी हिस्सा लिया। पुराने शहर के इलाके पुराना पुल में मूसा नदी से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई है। मौसूला इतलात के मुताबिक पुराना पुल इलाके में मूसा नदी में एक शख्स की नाश पाई गई। मुकामी अवाम ने कुलसुमपुरा पुलिस को फौरी इसकी इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीआरएफ टीम की मदद से नाश को बरामद कर लिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हबीबनगर पुलिस हुदूद में एक खातून ने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मौसूला इतलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शाहीन के तौर पर की गई है, जो कि मल्लापल्ली की रहने वाली है। खातून के शौहर हरीनाथ ने मीडिया को बताया कि शाहीन का अपने पड़ोसी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शाहीन और उनके बेटे में भी कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि शाहीन उस झगड़े के बाद अपनी वालदा के घर हबीबनगर चली गई थी और रात 10 बजे वो वापस लौटी। उनके सोने के बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इतला मिलने पर पहुंची हबीबनगर पुलिस ने सुराग रसा टीम को तलब किया, मगर 3 घंटे तक सुराग रसा टीम मौके वारदात पर नहीं पहुंची और नाश 3 घंटे तक लटकती ही रही। सुराग रसा टीम के पहुंचने के बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करके छानबीन का आगाज किया। मेरा नाम हरीनाथ है, मेरी बीवी का नाम शाहीन है। मेरा एक बेटा है 18 साल का, हमारी शादी के 24-23 साल के ऊपर होगा। और बोलते सो मेरी बीवी बाजूगाल से लड़ाई हो गई, बस उनके अम्मा के घर को गए। मेरा बच्चा पकड़ के लेके आया, चलो जान दो बोले तो दोनों फिर अम्मा बेटे खिरकिरी कर लेके चले गए। जाके उनकी बहन कहने आ जाती हूँ वहीं सो जाओ, तुम ना चले गए बोले तो मेरा बच्चा मैं सो गए। फिर उन्होंने आए खाना खाए क्या तुम ना, तो हमने खा लिए बोले तो ठीक है, मेरी तुमने खा लिया ना, सो जाओ बोले तो ठीक है। कपड़े धोते बोल के बालकनी में गए होंगे, दरवाज़ा इधर बच्चा जाके अंदर सोगा, मैं मेरे पलंग पे सोया। सोए तक नींद मेरे को भी लग गई, बच्चे को भी लग गई। आगे पुलिस वाले खटका मारे तो देखे तो क्या बाहर पुलिस वाले मारे, खटका मारे पास से भी हमको नहीं मालूम, बाहर ऐसा लाश पड़ हुई इनकी बोल। देखे बाहर आए, बच्चे को उठाया, हम फांसी डाल लिए, बल्कि मालूम भी नहीं हो। जाके देखे तो क्या है, फांसी डाला हुई, कुर्सी से एक टंग लटका हुई उनकी। क्या है, फांसी देने की कुछ झगड़ा आपसे हुआ? मेरे से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं तो समझाता हूँ, यहाँ पे पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ, कोई भी मेरे बारे में बोले तो बोलते बहुत समझाता बेचारा। कभी भी किरकिरी कर लिए तो समझाता हूँ, बच्चे को भी समझाता हूँ, नहीं लड़ना कुछ भी। बाजू कालों से भी नक्को लड़ो बोलता हूँ। वो क्या किराक पना छुटका कि बेटे के ऊपर से जाके सीधा आए सो है। कभी 10 बार ऐसा करने के, मगर क्या ऐसा कभी भी करते ना, कभी तो गैस का तेल डाल देती हूँ बोलते, ऐसा समझाता था, मनाता था बेटा। तो पर इतना बड़ा काम हो जाता बोल के मेरे को नहीं मालूम। मैं भी सोया था, सब लोग आके उठाए तो उठो बोले तो मैं परेशान हूँ, कौन है घर में, इन्हों कहाँगे बोल के देखा तो क्या अंदर बच्चे को उठाए तलक बालकनी में, इनके एक टांग कुर्सी पे फांसी लटक हुई। क्या नाम है? शाहीन। तो आपका बेटा कितने साल? मेरा बेटा 18 साल का है सर। तो बाजू वालों से झगड़ा हुआ बोल के? नहीं, बाजू वालों से झगड़ा नहीं, बच्चे से भी बाजू वालों से होते रहता झगड़ा। एक बार नहीं 2-3 बार हुआ। होती बात बेटे को क्या करे, बेटा भी 1-2-3 बातें बोला, क्या है जी तुम घड़ी लड़ रहे, जान दो चलो बोल के ऊपर खींच के लाया, इसको 1-2 पचकड़ा मारे। बच्चा भी क्या कर रहा, तुम कभी भी ऐसे करते, मैं चले आता हूँ बोल के बोला। तो फिर मेरे को फ़ोन करा, बच्चा तुम जल्दी आओ जी, मैं चले आता हूँ। होता ना बच्चा का काम करता हूँ लखनऊ में, यहाँ पे बंजरस रोड नंबर 12 पे। जान दे बेटे कल सुबह को ड्यूटी जाना है ना, 4-5 दिन से तुम ड्यूटी भी नहीं जा रहे, सब लोग 8 चीज़ें गए, तुम जाओ बोल के ठीक है, कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ बोल के कपड़े वगैरह सब कर लिया। सुबह जाता ना बोल के मैं चलो बोल के सुला दिया। आज तक ये सब तमाशा। हम ना यहाँ के रहने वाले, आप यहीं से यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए। क्या काम करते हैं? मैं प्लाटा में भी जाता हूँ और पेंट पॉलिश वाल पेंट का भी काम करता हूँ, और प्लाटा भी मैं छोटे मोटे प्लाटा बिकाता हूँ मीडिएटर के साथ, और रियल इस्टेट वही उसके भी प्लाट छोटे मोटे बिकाता हूँ कहीं पे। सब आपकी लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज है सब। लव मैरिज बोलते उनके घर वालों को भी मालूम था। 22-23 साल से, कम से कम 23 साल 24 साल के करीब हो रहा, और घर वालों को मालूम था, तो बात करके मैं लव मैरिज कर लिया। तो आपका कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है।
तो आपके कास्ट में आप रहते हो, उनके हाँ, उनको मैं उन्हें कन्वर्ट में दिया। आपका जो भी है नमाज नमाज पढ़े तो मैं राइट बोलता था तुम्हारे कास्ट में, तुमको बच्चा बोलता मेरे कास्ट में था। मैं वो भी बोला था जो भी अगर मौत मट्ठी भी करेंगे तो मेरे मम्मी लोगों को दे देना। कभी भी ऐसी बोलते थे, कभी मैं मरो या तुम्हारे से पहले मैं मरूंगी तो मेरे अम्मा लोगों को दे देना, मेरी मौत आ देखो मेरे को तुम्हारे लोगों में नहीं। अच्छी बात है, मैं बोला था ठीक है, जैसा तुम जैसा बोले वैसी बोलता था। हाँ पढ़ते थे ना, हाँ रोज़े में रहते थे। अभी जरा उनको थायराइड था, 2-4 जितना हुए उतने रहते थे, मगर कि नमाज नमाज पढ़ लेते थे। अभी यहाँ पर जो सुसाइड केस हुआ है, अभी यहाँ पर 2 घंटे से हबीब नगर PS लिमिट्स MS स्कूल की लाइन में 2 घंटे से सुसाइड केस हुआ। अभी नाइट जोन ऑफिसर आए, पुलिस 2 घंटे से वेट कर रहे, क्लूज टीम के लिए वेट कर रहे। 2 घंटे हो गया सर, अभी 2 घंटे तक नहीं आया। जोनल ऑफिसर से पूछ रहे तो उन्होंने बोल रहे आएगा बोल के बोले। अभी उन्होंने भी भर के गए, जब से ठहरे हमारे पास। क्या करना सर, इसके लिए एक्शन लीजिए DGP सर। आप क्लूज टीम को कॉल करे तो ना स्टाफ नहीं है बोल के बोल रहे। जोनल ऑफिसर को बोले हम लोग तो कॉल करे, अभी कॉल करो टीम नहीं है बोल के बोल रहे। 2 घंटे से बॉडी लटक रहा वहां पर हैंगिंग में, फैमिली पूरा रो रहा सर उनका। क्या करना सर, तकलीफ होता है ऐसा देख के। DGP सर आप एक्शन लीजिए ये चीज के ऊपर, आप जल्द से जल्द क्लूज टीम के ऊपर एक्शन लीजिए आप। साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने रैन बाजार डिवीजन के कब्रस्तानों और मनादिर के पिछले इलाकों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। गांजा नौशी करने के लिए नौजवान कब्रस्तानों और सुनसान इलाकों को इस्तेमाल करने लगे हैं। हैदराबाद में गांजा पीने वाले अफराद कत्ल व दीगर जराइम में कसरत से मुलविस पाए जा रहे हैं। हाल ही में याकूतपुरा असेंबली हल्के में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आ चुकी है। मंशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने की गर्ज से DCP साउथ जोन ने रैन बाजार SHO रंजीत कुमार गौड़ के हमरा रैन बाजार डिवीजन में वाक़े कब्रस्तानों और मनादिर के पिछले इलाकों का तफसीली तौर पर मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अफराद को इस खुसूस में ज़रूरी हिदायतें जारी की। तेलंगाना BJP की रियासती कमेटी के रुकन और रियल एस्टेट ताजिर तिरुपति रेड्डी के अगवा होने का मामला पेश आया है। जराये ने बताया कि हैदराबाद के अलवाल में नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। उनकी अहलिया सुजाता ने पुलिस से रुजू होते हुए अपने शौहर के अगवा की शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया है कि तिरुपति रेड्डी का ताल्लुक जंगांव जिले के दुबाकंतपल्ली से है और वो हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में अपने खानदान के साथ रहते हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में सुजाता ने कहा है कि उनका अपने मुखालिफिन से 5,929 गज अराजी को लेकर झगड़ा हुआ था। जुमेरात की दोपहर 12 बजे अलवाल तहसीलदार के दफ्तर के करीब से उन्हें अगवा कर लिया गया। कहा गया है कि जैसे ही वो तहसीलदार के दफ्तर से बाहर निकले उनका फोन बंद हो गया। खातून ने शुबा जाहिर किया है कि शायद उनके मुखालिफिन ने उन्हें अगवा किया हो। मंचियाल के रुकने असेंबली की हरासानी का शिकार एक खातून ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक जोड़ापत्ती शेजल नामी खातून को पुलिस अफसरान ने इंसाफ दिलाने का वादा किया था। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो एबेट्स पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है। ताहम पुलिस अहदेदारों ने खातून की शिकायत को कबूल नहीं किया और उससे मजीद वक्त मांगा, हत्ता कि उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं की। मुतासिरा ने इंकशाफ किया है कि पुलिस अफसरान ने उससे कहा है कि वो आला हुकाम से रब्त करने के बाद 72 घंटों में मुकदमा दर्ज करेंगे। खातून और उसके खानदान को MLA मंशियाल के हामियों की जानिब से हरासा किया जा रहा है और धमकियां मौसूल हो रही हैं। एबेट्स पुलिस स्टेशन के रूबरू से जल्द इंसाफ न मिलने पर मायूस होकर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया और उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून ने कहा है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। मुल्क भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। रियासत कर्नाटक में टमाटरों की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। हिंदुस्तान में टमाटर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई मकामात पर टमाटर चोरी किए जा रहे हैं। टमाटरों को चोरी होने से बचाने के लिए रियासत कर्नाटक के कोलार जिले के टमाटर मंडी में पुलिस की जानिब से न सिर्फ हिफाजती इंतजाम किए गए हैं बल्कि वहां पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं।
कोलार जिले में वाक़ टमाटर मंडी एशिया की दूसरी बड़ी मंडी बताई जाती है। एसपी नारायण ने बताया कि टमाटर की मुसलसिल हिफाजत की जा रही है। अब तक मंडी से टमाटर चोरी होने का एक भी वाक़या पेश नहीं आया। बताया गया है कि कोलार एपीएमसी मार्केट से टमाटर चोरी करने की धमकी आमेज कॉल मौसूल हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से टमाटर मुल्क भर में मौजू बहस बने हुए हैं। आम लोग परेशान हैं, जबकि काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो किसान जो मुनासिब दाम न मिलने पर टमाटर को सड़कों पर फेंक दिया करते थे, आज राहत की सांस ले रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन फ्लाई मरकज से कामयाबी के साथ खला में छोड़ा गया। चंद्रयान 2 के बाद साइंसदानों ने मदार तक पहुंचने, चांद की सतह पर उतरने, चांद की सतह का मुताला करने जैसे मकासद के साथ चंद्रयान 3 को खला में भेजा है। साइंसदानों के मुताबिक चंद्रयान 3 हिंदुस्तान का तीसरा चांद की तलाश का मिशन है। हिंदुस्तान अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा मुल्क बन जाएगा जो अपने खलाई जहाज को चांद की सतह पर उतारेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।